सोच सकते। तो ब्रेन नहीं है तो ऊपर, इसलिए ब्रेन का अपना एक बहुत महत्व है। एनीवन एल्स? No, one is enough. Please, we give her a big clap. Many people here, I only see few people clap. How can? Many people here, na? Only few people clap for her. कल ताली बजाना हमने सीखा था ना? साधु 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 एंड थैंक यू। I'm very sorry, sir. Ashtamangalam Foundation clap is very less. माझं नाव तरी वाजू द्या बाबा। Yes, now I feel it's the Ashtamangalam Foundation group member. Very good. अब मुझे लग रहा है कि अष्टमंगलम के लोग तालियां बजा रहे हैं। धन्यवाद। So, where is Akash in our body? Right away, how to know Akash? First, when you open your mouth, because this is a space, right? This is the space. There is a hole here. There is a hole here. There is a hole. In the bone, there is a hole. In the stomach, when you breathe in the lungs, there is a hole. In the stomach, when you eat food, so many food can go inside. It is the space. After you eat, it digests in the small intestine. And then from the colon, the big intestine, all the pieces go out because of the space. All the space in your body, it is called Akash. आकाश कळालं का? पुऱ्या बोला ताकि मेरा भी स्टॅमिना बचे। आकाश कळालं म्हणजे ते अंडरस्टूड आकाश। Wonderful. Wonderful. So, now we know this Mahapanchabhuta already in your body. So, in this body, we have Vata, Pitta and Kapha. Am I right? So, where is Vata, Pitta, Kapha? Where is Vata, Pitta, Kapha? In your body, because it is joint work. So, Vata is Akash and Vayu, Pitta is Agni and Jala, Kapha is water and Jala and Prithvi. So, if you have the Panchabhuta in yourself, then Vata, Pitta, Kapha in your system already. तो ये जो 5 महाभूत हमारे शरीर में है, आप समझ लिए ना हमारे 5 महाभूत कहाँ कहाँ है? आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, ये सारी चीजें हमारे अंदर ही है और इनके कॉम्बिनेशन से ये तीनों चीजें अंदर बनती है। और ये 3 चीजें हैं, इनका कॉम्बिनेशन आपने लिखी ली है, वात, पित्त और कफ। अब ये मान तो गए ना कि तीनों चीजें मेरे शरीर के अंदर पैदा होते ही आ जाती है। By birth we have all these things, but they agreed. Yes, wonderful. So, now we have to understand what is the nature of the Vata. Nature. Vata has Vata's nature. Pitta has Pitta's nature. And Kapha has Kapha's nature. What is the nature? One by one, we will learn right now. अब ये सारी चीजें हमारे शरीर में तो है, पर इनका स्वभाव क्या है? वात का अपना स्वभाव है, पित्त का अपना स्वभाव है और कफ का अपना स्वभाव है। हम इस वात, पित्त और कफ के स्वभाव को आने वाली चर्चा में चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ इस हॉल में बैठ। Now I'm going to tell you all the information for free, okay? Free information. I'm not going to charge you for this information. But when I ask you question, you must give the answer properly. If you don't give the answer, then the person never give me answer and then give me 100 rupees. अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, वात, पित्त और कफ के बारे में, इनका स्वभाव क्या है। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात।
क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा है जो हमें शरीर को स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करती है. आणि मराठीत बोलतो, काही गोष्टी समजायला त्यांना नाही पाहिजे. पैसे वाचते महत्वाचं आहे माझं. खूप माहिती नाही त्याने कमवावं लागते. आणि पैसे वाचले म्हणजे ते दाना देते आणि ते अष्टमंगलम नसते येईल असा अपेक्षा करतो, कारण की दलायला मानस आहे ना पुढे, तर आम्ही तुमच्या घरी येऊच. पण ही चर्चा तुम्ही खूप महत्वपूर्ण चर्चा है. तो अब इस चर्चा को ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताने वाला हूं. और मैं बहुत मेहनत से आपको सारी चीजें बता रहा हूं, बैठ के बता रहा हूं. मैं बहुत दूर से आया हूं, लेकिन जब मेरे कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तो मुझे बहुत बुरा लगता है. उससे बुरा ही नहीं लगता. जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देता है मैं उससे फूल से उसका स्वागत करता हूं, और जो मेरे प्रश्न का मेरे शब्द में उत्तर नहीं देता मैं उससे 100 रुपए लेता हूं. So, if you don't answer, you give me 100 rupee. If you answer, I will give you egg flour. हे कळालं ना? मतलब लवकरच कळते. Alright. So now what? What is Vata? Vata is Akash and air. Vayu. This is the do tattva in Akash. When our body is moving, when I move, did you see my hand is moving? Because of the Vayu tattva, because of Vata. Because of the Vata, I can move my hand. If there is no Vata in my body, I cannot move my hand. I walk, my eyes is blinking. My eyes is blinking and my muscle is moving. My muscle is moving, my heart is pumping. My heart is pumping. My cell, every cell is moving. Every cell die and again the cell will come back alive, create new cells in our body. Everything is because of the Vata. So Vata means moving. Yes. कुछ लोगों के पास बुक्स नहीं है. आप प्लीज वॉलंटियर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको बुक्स दो. बुक्स मैंने वहां पीछे रखी है, स्टेज के पीछे पेन्स. कुछ लोग लिखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि अपने 100 रुपए बनाना नहीं चाहते हो. तो मेरी अष्टमंगलम फाउंडेशन के वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एक आदमी चक्कर मारे. अभी सभी मनों में डिस्टर्ब होता है, और जिनको नहीं मिला तो सिर्फ अपना हाथ ऊपर कर देना. वॉलंटियर आ जाएगा, वॉलंटियर आ जाएगा. जब किसी के हाथ में दिखे तो वॉलंटियर आ जाएगा. प्लीज आवाज मत दीजिए, उसे डिस्टर्बेंस होता है. देखिए कोई रिपीट दिस. Yes, I will. So Vata is Akash and Vayu. So when our body is moving, when my body is moving, it means Vata. Because of the Vata, my hand can move, I can walk, my eyes is blinking. Every movement in my body, my muscle, my cells, when it moves, it means Vata. जो भी मूवमेंट हमारे यहाँ होती है आकाश और अग्नि के मिलन से, उसको वात है. देखो मेरी आंखें ऐसे ऐसे हो रही है, देखिए मैं वहां जा रहा हूँ, देखिए मेरे हाथ ऐसे ऐसे हो रहे हैं, देखिए मेरे बाल उड़ रहे हैं, देखिए मेरे पैर दुख रहे हैं. ये वात है. आपण म्हणतो वात झाला म्हणून. आता कळालं वात कसा झाला म्हणून. कोणाकोणाला वात आहे हात वर करा. देखिए लॉट ऑफ पीपल इज सफरिंग विद वात. What? They are moving. रुमाल है बाबा. Yes. लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग विद वात. What? Yes. खूप लोक परेशान वाटते. ते आपल्याला एक शिबिर परत वातावरच करावं लागेल असं वाटतं मला. So now we have to. So now you know what Vata means moving in your body. Vata is moving. So if your Vata in your system, if the Vata in your system is balanced, if the Vata in your system is balanced, what will happen? The Vata, if it is balanced in your system, it will create creativity in you. Creativity, a lot of ideas, lot of plans, beautiful ideas, beautiful creation happen.
if the vata is balanced. And if the vata is balanced in your body, you will become very flexible man, not very stubborn man, stubborn human. You will become very, very flexible. यही हलचल अपने शरीर में आगे होता है। जो भी हलचल हमारे शरीर में होती है, चाहे मैं चल रहा हूँ, चाहे मेरा हाथ हिल रहा है, चाहे मैं बैठ रहा हूँ, ये सिर्फ वात के कारण होती है, क्योंकि आकाश और अग्नि का मिलन है जो हमारे शरीर में है। लेकिन ये जब वात बिगड़ता है, सब बिगड़ता है, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये जब बैलेंस रहता है, बैलेंस मीन्स कल का बैलेंस, इसको हम दुख भी बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल का भी थोड़ा थोड़ा, इसको हम दुख भी बोलते हैं, अनबैलेंस है। लेकिन ये जब हमारे शरीर में अनबैलेंस होता है, अब मुझे समझ रहा है कि दुख और अनबैलेंस, जो दुखता है उसको दुख बोलते हैं। वो आयुर्वेद से कैसा रिलेट है? जब ये बैलेंस होता है तो हम एक्टिव रहते हैं, और हम जब एक्टिव रहते हैं तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, और सिर्फ सोचते ही नहीं है, हम क्रिएटर बनते हैं, हम बहुत अच्छा सोचते हैं। इसलिए वात का बैलेंस रहना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। So when vata is imbalanced in your system, what will happen? The vata will lead you a lot of fear, a lot of fear in you. Whenever you feel fear, whenever you feel anxiety, whenever you feel abnormal movement in your body, in your system, in your mind become abnormal, then vata is imbalanced. जब भी ये वात गड़बड़ता है, अनबैलेंस हो जाता है, सारखंच नाही राहत, म्हणजे थोडक्या भाषेत, तेव्हा आपल्याला दुखणं वाढतं, म्हणते ना, जेव्हा जमल्यामध्ये दुखणं वाढतं, तसं हे वात आहे वाटतं मला। आणि जेव्हा हे अनबॅलेन्स होतं, तेव्हा मला भीती वाटते, भीती, एन्झायटी म्हणजे परेशानी, फिअर म्हणजे डर। जेव्हा हे अनबॅलेन्स होतं, तेव्हा मला भीती वाटते, खरारा येतो। म्हणून हे वाताचा बॅलन्स राहणं खूपच महत्त्वपूर्ण आहे। So now we know about vata when it is balanced and when it is out of balance, right? So now we learn about pitta. Pitta is fire and less water. Most is fire, water is less. That is the pitta. Pitta in our system makes hormones, many hormones, and control our digestion. You know, when we eat food, khana go inside the stomach, and it needs a lot of agni to digest the food. Digestion. After digestion from your stomach, the nutrition, it will suck the nutrition from the small intestine. Small intestine, it takes the nutrition, send to every cells in your body. Everywhere need the nutrition. So that is the work, job of the pitta. That is the job of the pitta, and maintain your temperature, body temperature. If it not maintain the body temperature, what will happen? You will मर गया। So pitta is make balance your temperature. ये कळालं का? नहीं कळालं, कोई नहीं। अग्नि और थोड़ा सा पानी, बहुत ज्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी। हे भंतेजीचे शब्द त्याचप्रमाणे सांगत आहे, जसे ते सांगत एक्सप्रेशन ना, तसंच मी हिंदी आणि मराठीमध्ये दोन्ही गोष्टी ह्याच एक्सप्रेशन सांगत। अग्नि आणि थोड़ा सा पानी, अग्नि और थोड़ा सा पानी, इनका जब कॉम्बिनेशन होता है, ये जब मिलते हैं, तब पित्ता का निर्माण होता है। मुझे ऐसे लगता है कि आप वात के बारे में समझ गए होंगे कि वात क्या होता है, इसका बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग। इसलिए मैं भी आपको पित्त के बारे में बता रहा हूँ। पित्त का निर्माण हमारे शरीर में वायु और थोड़े से पानी के मिलन से होता है, और ये जो पित्त तैयार होता है, ये हमारे पेट में तैयार होता है, जिससे अग्नि की उत्पत्ति होती है। और ये जो अग्नि है,
हमारे खाने को पचाने में मदद करती है। तो जो बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है, वहां पे हमारा खाना पचता है, और उस खाने पचने के बाद जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जाते हैं, जो हमें एनर्जी देने में मदद करती है। और ये पित्त की वजह से ही हमारा पाचन तंत्र बना रहता है। जो हम कॉमन लँग्वेज में बोलते हैं, मी थोडं ऍड माझ्यासोबतही करत राहतो, जेणेकरून समजायला सोपं होईल की ऍसिडिटी वाढली बा, आता गोळी घ्यायला लागतोय, एसिडिटी बढ़ गई, गोली खाना पड़ता है। तो मुझे ऐसे लगता है ये पित्त जब बढ़ता है तभी एसिडिटी बढ़ती है। ऐसे लगता है कि थोड़ी सी अभी बहुत ज्यादा पानी अगर हो जाता होगा तब पित्त बढ़ता होगा। Bhante ji, am I right? If the water more, less fire, then pitta increases. Am I right, Bhante ji? If when the water is increased in your system, pitta will be less. Heat will be less. जब पानी बढ़ता है तब पित्त कम होता है। ये भी लिहून घ्या, प्रश्न येणार आहे वाटतं, लिहून घ्या बेटा, लिहून घ्या, 100 रुपये आले पाहिजे। तो जेव्हा पानी वाढतं, पानी बढ़ता है और अग्नि कम होती है, तब पित्त कम होता है। Right. So now, if the pitta is balanced in your system, what will happen? You will have a lot of understanding. Understand each other. We have to understand each other. If pitta is balanced. If pitta is not balanced, what happens? Fight. You said I am right, she said she is right, he said he is right. And fight happens. Okay? If not balanced. But when it is balanced, understanding happens. Love happens. Love. And intelligence. A lot of, if you feel I am very smart or intelligent, if you see someone is very smart, because of the pitta is balanced. If the मी जरा भावनिक होतो, मला आज माझ्या वयाच्या 48व्या वर्षी शब्दाचा अर्थ कळत। आई वडिलांनी तर फक्त शब्द शिकवलेच होते, पण मला आज अर्थ कळत आहे। धन्य माझे गुरुजी, धन्य माझे धंदे कारणे गुरुजी, त्यांनी मला हे संधी दिली। अच्छा, मला फाउंडेशनमध्ये चालवायला आई वडिलांनी फक्त मातृभाषा दिली, तर समाज माझ्या गुरुजींनी दिली। आणि मला असं वाटतं प्रत्येकाचा धार्मिक गुरु असावं त्या माध्यमातून। गुरुजी, अब आपको ये पता चल गया होगा कि वात बैलेंस रहने से क्या होता है और पित्त बैलेंस करने से क्या होता है। अगर पित्त बैलेंस रहा तो हमारे शरीर में क्या होता है, हमें करुणा जगती है, हमारे में प्रेम निर्माण होता है, हमारे में मैत्री निर्माण होती है, हमारा दिमाग चलता है, हम अच्छा सोच सकते हैं, हम दूसरों के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, हम अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं, हम समाज के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। मी का बरं म्हटलं की मैं क्यों बोला की मुझे आज शब्द समजा, भांडणातले म्हणतो का त्याला माझं पित्त खवळलं। तुम्ही शब्दाचा अर्थ समजा, भगवान बुद्धाने काय दिलंय मला तुम्ही समजा, शब्दाचा अर्थ समजा। कारण की ज्यांनी शब्दाचा अर्थ समजला, खूप लोकांना प्रश्न आजही कथेवर आहे, खूप लोकांना प्रश्न आहे, मी हॉलमध्ये सांगतो, खूप लोकांना प्रश्न आहे की कथा कोणाची असते, बुद्धाने कथा का करावी, कथा केली पाहिजे। माझा आता काम मत झालं, त्यांना माहित नाही, मला कदाचित त्यांनाच प्रश्न उठतो। तुम्ही पहिले अभ्यास करा, शिका, मान्य करा माझ्यासारखं की मला येत नाही। मैं मानता हूं कि मुझे आता नहीं, तभी तो सीखूंगा ना। अगर मैंने मान लिया कि मुझे सब कुछ आता है तो मैं सीखूंगा कहां से। तो आज मुझे शब्द का अर्थ समझ आया जब मैं धम्म की मार्ग पे चला। का बरं माझी आई म्हणायची, तू माझं पित्त खवलू नको, तुले मी असं मारेन की डोकं ठिकाण्यावर येईल। तर मी माझ्या आई सवयी अत्याचार केला सांगतो, तिचं पित्त खवळलं। तर कृपा लेकरांनो, आपल्या आईचं पित्त खवळू नका, बेलण्यानं मारतो। आणि हा बेलण्याचंच कारण आहे की आज मी माझ्या पोटाला बाहेर लागलो। धन्यवाद माझी माय, तिचं पित्त थोडंसं खवळल्यानं मला माणसात बनवलं, ती म्हणते। If the pitta is imbalanced in your system, it will lead you to anger easily.
you will become so jealousy. You will have a lot of inflammation, here rashes, lot of rashes and lot of skin problems, skin issues, and you have a lot of hate other people because of the pitta is imbalanced in your system. जब आपका पित्त खवळते मराठी भाषेत पंडितजींना अनबॅलन्स शब्द म्हटला मीन्स ऊपर नीचे मी वराडीत बोलतो तुम्ही म्हणजे जेव्हा पित्त खवळते तेव्हा खास होते कुठेही होते तुमचं शरीर खाजवते आणि तुम्ही दुसऱ्याची जलन करता मेरी साडी तेरे साडीचे सफेद पैसे आपले कपडे तसे पांढरे जाय मला कोणाचाच काही विषय नाही आहे पर मेरी साड़ी तेरे साड़ी से सफेद कैसे सुपर की चमकार ज्यादा सफेद हा प्रॉब्लम होत नाही ऐसा मला क्यों अध्यक्ष साहब बराबर है ना अष्टमंगलम फाउंडेशन की कोशिश है कि सबका पित्त नॉर्मल रखें और हमारे में करुणा जगे हमारा दिमाग चले हम दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ करुणामय और मैत्री से रहे पंडित जी वी विल ट्रैवल लेवल बेस्ट टू मेक आवर पित्त बैलेंस को तो करुणा करते I need very much. India needs very much. थैंक यू वेरी मच अगर आप ऐसे कर पाओगे तो अगर भारत देश में हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी और ये मैं चाइना और मलेशिया में जाके बताऊंगा कि अष्टमंगलम फाउंडेशन इंडिया में रहेगा Wonderful. And kapha. Now kapha dosha. First I explained vata dosha. Second I explained pitta dosha. And now kapha dosha. Kapha. So kapha is earth and water. Two tattva in kapha. Kapha is the one which creates the form. Any form, if you see my ear, my head, my body, my bone, everything is created by the kapha. And kapha also makes the joints, my joint, soft. I can move because of the water there, gel is there, so I can do this because of the kapha. Not only this make the kapha, but make sure the joints can move. And kapha send all the liquids everywhere in the body. Kapha sends all the liquids everywhere in the body, everywhere. The brain has water. Have water, liquid. And everything in the body, is about kapha. So every liquid in our system is about kapha. And kapha, it makes your skin very soft. When you touch someone's skin, very rough, because kapha is not enough. If your skin is smooth, it means kapha is balanced. Kapha is balanced. And kapha maintains immune system in your body. So that is the work of kapha in your system. ये कफ काय है ये आपले मसल ये जॉइंट्स आहे ये हालतात फक्त हाताचे नाही पायाचे ह्या जॉइंट्स हे सगळं कफ आहे आणि हे जेवढे पोषक तत्व तरल पदार्थ आहे ते कफामुळे आपल्या शरीराच्या अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं, अलग अलग भागों में जाता है कफ और ये पोषक तत्व ही हमें जिंदा रहने में मदद करते हैं। और जब हमारे शरीर में कफ बैलेंस रहता है तब हमारी स्किन ऐसी बहुत नरम रहती है और जब हमारे शरीर में कफ बैलेंस नहीं होता तो हमारी स्किन ऐसी हार्ड हो जाती है। अब मैं ये बताना चाहूंगा, मुझे आज समझ आ रहा है, अगर सुंदर दिखना है, कोमल दिखना है तो लक्स साबुन नहीं लगाना पड़ेगा, कफ बैलेंस रखना पड़ेगा। लेकिन इनका जो मिला है ना, इसका रे बेटा तो पे चाहिए ना, कफ कैसे बनता है, कफ कैसे बनता है, तो अर्थ है, इनका मिलन अच्छा करो
लक्स और मोदी साबुन बचाओ और पैसे बचाओ और वो दान अष्टमंगलम दे दो तो कफ बैलेंस होगा. Okay, very good. So if the cup is balanced, if the kapha is balanced in your system, you will feel very calmness, very calm and patient because of the kapha is balanced. And you also easily can forgive others if when people make mistake. Very easily you can forgive. So no problem. You forget. You forgive other people easily. And not only that, most important about kapha, if kapha is balanced in your system, it makes you a lot of love, full of love. Love for others. Easily you can love anyone. You can love your family member and you see everyone as your family member because of the kapha is balanced. एक कफ बैलेंस रहने का क्या फायदा है? कि हमें शांत रखने में मदद करता है. हम कितने शांत रहना देखिए, इसका मतलब हमारा कफ भी क्या है? बैलेंस है. हम सबसे प्यार कर सकते हैं, हम सबसे मैत्री कर सकते हैं, हम सब को अपना परिवार का भाग समझ सकते हैं. जैसे अष्टमंगलम फाउंडेशन का कफ भी शायद कितना बैलेंस है देखो. हम अपने परिवार समझ के आपको पैड दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, आपको खाना खिला रहे हैं, आपसे प्यार से बात कर रहे हैं. बंदी जी, आई थॉट द कप ऑफ अष्टमंगलम इज बैलेंस. Yes. And if the kapha is imbalanced in your system, it will lead to attachment. Attachment. A lot of people attachment. Oh, this is mera, mine. And then after mine, and sad. Because nothing is permanent in this world. Everything is anitya. So if you attach with the material of anitya, then you will become sad. Because kapha, when it is imbalanced, right away you will become attached, too much attachment. And greedy, too much of greedy. I want more, not enough. This is the problem of the kapha when it is imbalanced. And possessiveness, this is my, mera, this is my husband, this is my son, this is my wife, this is my country, my this, my that, my religion. So everything is my possessiveness will become too much. And not only that, if kapha is too much in your system, it congests. You will have a lot of disease. Because too much of congestion in your system. So this is imbalance of kapha. एक कड़ा लगा ते कहता खूप महत्वाचं आहे. काय कळालं नाही गो? जोरदार बोलणं यार. ओके. माझं म्हणतंय पण आहे नाशवंत. मला वाटतं याही ते कसं झालं? माझं म्हणतंय पण आहे नाशवंत. गाणं ऐकलं का हे? कुणाचं काय करू मी म्हणते तुला. हे सगळं माझं जेव्हा बघून म्हणतोय माझं कधी घेऊ दे, चिरू दे, पिऊ दे, वर्गणी घेऊ दे, वर्गणीचे खाऊ दे, दाबू दे, हिशोब नको लिहू दे, पावत्या गायब करू दे, विचारलं तर तू कोण, मी कोण, मी अध्यक्ष, मी वारंवार बोलणार म्हणजे बोलणार. ये ऑर्थोडॉक्स कथा नहीं है अनिल भाई. जो सच है वो सच है. अष्टमंगलम वहां बोले जाएंगे गलत होगा. दिस इज द ब्रीड मदर ऑफ अष्टमंगलम. अष्टमंगलम डील विद फॉर दिस. क्या गलत रहेगा अष्टमंगलम बोले. हम गलत देख के चुप रहने वालों में से नहीं है. जो गलत होगा सो गलत होगा. या सगळ्या गोष्टी कशामुळे होते, क्यों होता है ये सब? जब कफ अनबैलेंस होता है, चिड़चिड़ होता है. मेरा पति, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा पैसा दे मले, ताण देत नाही, लढाई झगडा, ताण तंटा, ईर्ष्या, दुर्भाव, हे सगळं कशामुळे होते? मला वाटते हे परीक्षा देणार आहे. तुम्ही हे लिहून घ्या. वात पित्त कफ
बॅलन्स झाल्याने काय होते, अनबॅलन्स केल्याने काय होते, याचं मिश्रण काय, वाढल्यानं काय, कमी झाल्यानं काय, ते लिहून घ्या. आपल्याला फुलं पाहिजे बरं, आणि फुलं आपण जमा करून पुढच्या वर्षी हे फुलं कोणीतरी एक माणूस, मी सांगतो या सभेत, त्याला मलेशियाला पाठवून मी ते फुलं घेऊन. अष्टमंगलम फाउंडेशन स्पॉन्सर्ड दॅट मॅन और गर्ल और वुमन. त्यांना मी स्पॉन्सर्ड, अष्टमंगलम फाउंडेशनचा कुठलाच डायरेक्टर जाणार नाही. अष्टमंगलम फाउंडेशन एखाद्या माणसाला तायवान किंवा मलेशियाला जाण्यासाठी स्पॉन्सर करेल, हे फुलं घेऊन गुरुजीच्या भेटीवर. मी याच्यासाठी म्हणतो की आमचा तो बिघडलं नाही पाहिजे. अष्टमंगलमच जाईल, डायरेक्टरच जाईल, आम्हीच करतो, आम्ही एवढी मेहनत केली, दुसरं कशाला जाऊ. Banteji, we will try to balance our talk. And Ashtamangalam has promised to these people of Wardha, if they give correct answers, Ashtamangalam Foundation will sponsor somebody to come to Taiwan to your place or Malaysia to meet you. Wonderful. By taking this class, roses to you, that you have learned Ayurveda in accordance with that. म्हणून आमचा कफ व्यवस्थित राहायला पाहिजे. आपण आजपासूनच बुद्धाच्या धर्माप्रमाणे वात पित्ता कफचा अभ्यास करू. And now, most important part, please take note for exam. For exam, please make note. सप्लिमेंटरीचा प्रश्न आहे हा. येणार आहे बरं, लिहून घ्या. जेव्हा परीक्षा येईल ना, याचे 10 मार्क आहे. काही आलं नाही तर चालते, 35 यानं देणार. ते लिहून घ्या तुम्ही परीक्षेचा प्रश्न. We have a lot of exam, na? NET exam, IPS exam, any exam in India, na? Now this is the sadhu exam. हमारे साथ बहुत सारे एग्जाम होते हैं ना, यूपीएससी, एमपीएससी, नीट परीक्षा, पोट पाण्याचं होता है ना सारे एग्जाम. तो ये साधु एग्जाम है, ये साधु का एग्जाम है. So please make very clear note. तो इससे अच्छे से नोट्स लो. कॉपी नहीं होगी, पकड़े जाओगे तो रेस्टिगेट होगा. So for vata in your system, in this body, vata's main site. Main site means main office in your system. Where is the office of vata? Vata's office is your big colon. When you go for door number, so that is the colon, big intestine. The big intestine is the main office of vata. आता परत काय या वयाच्या 50व्या वर्षी समजून राहिलं, कमाल आहे बाबा. मी काय लेकराला सांगेन, मलाच 50व्या वर्षी समजून राहिला तर लेकराला काय सांगेन. कठीण आहे माझं. हे जे बात आहे त्याचं मेन ऑफिस कुठे आहे? ओट भाषा सगळं माझ्या हिशोबाने तरी सगळंच पोट आहे. बिग स्मॉल वो बात की बात आहे. पण त्याने पोटात हवा भरली, आता शब्द समजला, पोटात काऊन हवा भरली, कारण ऑफिस बिघडलं आणि कलेक्टर बिघडला तर आलं खराब. म्हणून आपल्याला 2 नंबर वारंवार जावं लागते. पोट बिघडलं, हवा भरती वगैरे वगैरे. तर मेन वाताचं मेन ऑफिस कुठं आहे? बिग ताईच्या प्रमाणे बिग इंटेस्टाइन and small intestine. Very good. And now, where is the main site of pitta? Pitta is your liver, and your small intestine. Not bara. Bara intestine is vata. Chokka intestine is pitta. And your liver. This whose side is for pitta main office. वाताचं समजलं ना? का क्रिटिकल क्वेश्चन आहे बरं हा. ट्रिकी क्वेश्चन. वात म्हणजे अरे बोला तरी. बिग इंटेस्टाइन. आणि पित्त म्हणजे सोबत व्हेरी गुड. जमलं बाबा. Got it into it. Wonderful. So kapha
So where is the main site for the kapha? Main site, main office for kapha is your lungs, and your stomach. When you eat food, food goes to the stomach. So stomach and lungs are the main site for the kapha, main office. सब समझ लगा? सब समझ लगा? नहीं समझ लगा? Got it? Wonderful. I really appreciate that. You said understand. When exam time, teacher know whether you understand or not understand. अभी तो तुम हाँ बोल रहे हो, लेकिन परीक्षा के समय बता चलेगा कि आप समझे कि नहीं समझे तो लिख लो. Alright. When I said many times for vata balance, vata imbalance, pitta imbalance, kapha imbalance. So, what is the balance? What is the range of the balance? Well, I only said balance, but I didn't say the range, right? Because everyone is a different body, different individual body. Some are male, some are female, individual body. So, what is the balance? I'm going to tell now. मैं बार बार बोल रहा हूँ बैलेंस अनबैलेंस, लेकिन मैंने अभी तक नहीं बताया कि बैलेंस और अनबैलेंस का मतलब क्या है. सबका शरीर अलग अलग है. अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि उसकी रेंज क्या रहना चाहिए. 20, 80, 20, 70, 30, 60, 40. तो हमको बैलेंस कैसे करना है, क्या रेंज में रहना चाहिए हमारा ये बैलेंसिंग चीजों. बोलते जी ये फाइन परमिशन 2 hours are they have covered 2 hours. Already 2 hours. Should we take a break or a time permission for 10 minutes? Unfortunately not. Unfortunately, it is not. But if you prefer, yes, I will give only for 5 minutes. जैसे बंटी जी का आदेश था कि 2 से 2.5 घंटे के बाद हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, लेकिन 10 मिनट नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो चुके हैं. लेकिन हम एक 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं. लेकिन इस 5 मिनट में आपको पानी जगह पे मिल जाएगा. पानी वाले प्रवीण भाई वॉलंटियर्स प्लीज पानी का अरेंजमेंट कीजिए. और किसी को कहीं वॉशरूम वगैरह जाना है तो आप जाके आ सकते, खड़े हो सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए. और प्लीज डिसिप्लिन बनाए रखिए. मार नहीं है मेरे में, बुद्ध है. और जाके वापस आना है 5 मिनट के लिए, जाके वापस आना है 5 मिनट के लिए. और जल्दी आना है, हम किसी के रुकेंगे नहीं. जिसको सुनना है वो सुनेगा. 5 मिनट